मैं इनके साथ सवाल पूछना चाहूँगा. You know, we've been doing this for a long time. तेरा घाटा से, you know, you've been coming on the MJ show. I had the pleasure of having you on the show as well, talking about your last few songs that you've done with him. This is something spectacular. ये तुम दोनों ने जो कर दिखाया है, especially, you know, what he's done with putting the whole project together, you with these 5 fantastic songs is brilliant. अभी क्या 2 हफ्ते हुए हैं सारे गाने रिलीज़ होके? पहला गाना अराउंड 2 हफ्ते पहले रिलीज़ हुआ था और वैलेंटाइंस वीक में वो वैलेंटाइंस डे पे फाइनल गाना रिलीज़ हुआ. 5 गाने 2 हफ्तों में ऑर्गेनिकली ऑलमोस्ट 15 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं इन 5 गानों के. दैट इटसेल्फ इज़ फैंटास्टिक. You've been breaking all sorts of ground for a very long time. ये कॉन्सेप्ट जो है, ये like I told you when we spoke on the phone also, it's a completely unique, completely new thing. What made you think of doing something like this? ये ऐसा प्रोजेक्ट क्यों करना था? See, क्या होता है ना कि when you are backed with a big label और या एक बॉलीवुड मूवी से आप बैकिंग होती है, आपके गाने उस तरफ से आते हैं, तो आप रेगुलर चीज़ें कर सकते हो. You know, you are entitled to do things which normally happens. Correct. But what happens is when आपके पास हाँ, कुछ गिर रहा है ना ऊपर से. देखो यार, बारिश हो रही है यहाँ पे. ऊपर से so yeah, तो पर जब आप इंडिपेंडेंटली चीज़ें करते हो ना, when you are doing things on your own, आपका खुद का पैसा लग रहा है, खुद का बजट है, and you are making your own music, तो आपको लोगों को कुछ नया देना ही पड़ता है हर बार. And so this was the kind of work actually जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे हमेशा यही करना था. Right. You know, कि हमेशा ऐसा ही जॉब हो कि कुछ नया मैं दे पाऊँ और ऐसा भी दे पाऊँ जो लोग मुझसे चाहते भी हैं और प्लस अपना कुछ नया दे पाऊँ. So I think this is a perfect example of this series was a perfect example of कि मेरे से जो रोमांटिक गाने, सैड गाने जो पब्लिक को चाहिए, करेक्ट, वो भी हुआ. एंड प्लस समथिंग न्यू विच आई ऑल्सो वांट टू डू एवरी टाइम. करेक्ट, दैट वाज आल्सो पॉसिबल. और मैं हमेशा जब गजू के गाने देखता हूँ वहाँ पे कमेंट्स जाके पढ़ता हूँ कि क्या कमेंट्स है. तो लॉट ऑफ द कमेंट्स वर लाइक दिस इज द ओल्ड गजेंद्र वर्मा दैट वी वांटेड. एंड देन ऑन वन सॉन्ग लाइक अरे ये कितना फ्रेश है, कितना नया है. सो यू नो यू आर एबल टू सैटिस्फाई योर ओल्ड फैन जिन्होंने तुमको एम्प्टीनेस से सपोर्ट किया है. और अभी जो नए फैंस हैं, जो नया एक ऑडियंस है, उनको भी तुमने यू बीन एबल टू अट्रैक्ट देम. आई एम गोना आस्क हिम मोर, बट बिफोर दैट लेट मी आस्क समथिंग टू मानसी. फॉर यू this is not just your first collaboration with Gajendra. You worked on other songs with him, but ये अलग था. I'm sure even in terms of the amount of time that you had to invest, this must have been much bigger than any of the other. You've done 2 videos with him before this series, right? So वो दोनों गाने तो बहुत अच्छे थे, but ये जो प्रोजेक्ट था, इतना बड़ा स्कोप था. What did you think of that? Did it almost feel like यार ये तो मैंने फिल्म साइन कर दिया है? Almost. Come a little closer so that everyone can hear you. It's like a mini series only. Huh. I mean, this idea was something which was so unique, and I mean, we were very sure that this is something unique and very fresh. Correct. And everybody wants to see something new now. Yeah. And this mini series was this idea like from Vikram and Gajendra. They came up with this idea, and I was really excited for that. And now when I see it, really feels like film. Everybody is like, ये तो film है. When the trailer came out, they thought it's a film. Film है, बिल्कुल. After the songs were released, they got to know it's like a series. But I'm very happy with the result, and everybody is loving it. So. Nah, and I have to compliment you like I did in person on WhatsApp that I think both of you have been so believable in it. What I love most about this is कि यार ये सिर्फ म्यूजिक वीडियो बनाने के लिए बनाया नहीं है. It actually feels कि यार इन दोनों की एक रोमांटिक कहानी है जिसको हमने बस दूर से देखा है. That's the most believable and the most real storyline that you can watch, whether it's in a film, whether it's in a web series or in a musical series. जो मुझे लगता है एक नया कॉन्सेप्ट है म्यूजिकल सीरीज. ये कॉन्सेप्ट ही नया है, और इस नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने के लिए पहले भाई विक्रम आप आगे आ जाओ. Let's talk about this. पहली बार जब हम मिले थे और हमने बातें की थी, हम मिले थे तेरा घाटा के लिए. पर जब हम मिले थे तब मैंने बोला था कि उसके पहले के जो भी मैंने वीडियोस देखे हैं, दे फेल्ट लाइक मूवीज. यार तुमने तो ये अगले लेवल पे ले लिया. पहले एक गाने में एक छोटी मूवी रहती थी, अभी 5 गानों को लेके ऑलमोस्ट एक मिनी मूवी बना दी आपने. सो What made you think that this is the time? लॉकडाउन के दौरान जब सब लोग सोच रहे हैं यार घर पे बैठ के छोटा सा वीडियो कैसे बनाएं, अपने पास जितना है काम धंधा उसमें कैसे करें, इस दौरान ऐसा एक मॉन्यूमेंटल कॉन्सेप्ट बनाना, ये कैसे तुमने सोचा? What made you think of this? So
Actually, I love movies and I love independent music also. You know, making new concept and getting new ideas from video, from audio. So that's my passion is. तो जब भी मैं गाने भी हम लोग शूट कर रहे थे, म्यूज़िक वीडियो हम लोग बनाते थे पहले, देन आई थॉट कि यार कोई ऐसी कोई कहानी अगर कही जाए जो जो एक पूरे गानों के अंदर हो, so that where the thought came. तो I wrote the story and then और ये जो गाने थे, ये तुमने स्पेशली इस कॉन्सेप्ट को लेके बनाए हैं या वो सम ऑफ देम एटलीस्ट कि पहले गाना बनाया था एंड देन इट फिट परफेक्टली इनटू द स्टोरी? अभी एक्चुअली 2 गाने ऑलरेडी थे, हाँ, और फिर जब स्टोरी पूरी हुई तो फिर बाकी के 3 गाने बनाए। वेरी नाइस। अरे भाई अभी लगता है द वर्ल्ड इज इमोशनल हो गया ये इतना अच्छा ओकेजन देख के। पर मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा सुशांत, फॉर यू यू बीन सपोर्टिंग गजेंद्र वर्मा एंड नॉट जस्ट गजेंद्र वर्मा, लॉट ऑफ other fantastic artists, but especially something like this. What did you feel about a concept like this being introduced into the music space? I think thanks for saying that in terms of supporting. See, as QQ, we always try to support in terms of what an artist wants. Correct. The other guys, what they try to do is, try to like, ab Correct. ye karo, हाँ. wo karo, yahan karo, yahan karo. So with Gajendra and what we've seen at Vikram bhai, actually, Akshay bhai, all of these guys, when we sat on the office, तो एक कॉन्सेप्ट आया था कि यार ये कुछ अलग करते हैं। Right. मुझे याद है, याद करके से लेके आई थिंक अब तक विनोना तुम एवरीथिंग, एवरी कंटेंट, एवरीथिंग गजेंद्र ने ट्राई किया कुछ अलग करने के लिए, और इट इज़ चैलेंज फॉर अस ऑल्सो एज अ कंपनी की हाउ डू वी नाउ डू जस्टिस। Correct. And when this concept came in terms of movie wise, it's a movie. If you Correct, look at it's a movie. Gajendra has acted, Mansi has acted. I mean, you don't have to say she's a born actor for that matter. So Yes. she's done. So the whole picturization, movie cut, and doing through a singing, it's a different, unique concept. बिल्कुल. So we always trust when these kind of things come, because intuition is more than the data point, right? Correct. I think that's what's happened. Correct. Guys, come. We have to come closer. So- but yeah. आपने सवाल का जवाब शायद थोड़ा सुन लिया, यहाँ पे वहाँ तक पहुँचा नहीं होगा आवाज़, मगर माइक्रोफोन ने तो पकड़ लिया है। बट लिसन, ये अजीब सा एक आज स्पेशल ओकेजन है लगता है हमारे इस फेब्रुअरी महीने में बारिश आ रही है वेरी स्पेशली। यार सब लोग, पूरी इंडस्ट्री रो रही है कि यार ये गजेंद्र वर्मा ने क्या कर दिखाया, और इसीलिए ऊपर से बारिश आने लगी है। बट लिसन, लेट्स गिव दिस एंटायर टीम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज गाइस, इट्स फैंटास्टिक। I would like to just say something. Please. Thank you so much, आप लोग आए एंड स्टिल आप लोग खड़े हैं, बारिश भी आ रही है, कैमरे गीले हो रहे हैं, एंड आई होप आपने इस वाले एल्बम के गाने सुने हो, सारे नहीं सुने तो प्लीज भाई तुम अभी बीच में आ जाओ, गाने भी आपको पसंद आए, आजा बीच में आ जाइए, आप आ जाइए। हाँ, सोचेंगे मेरा गाना रिलीज नहीं तो या प्लीज़ अपना थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम और यहाँ आने के लिए, हमें सुनने के लिए और मौका देने के लिए, ताकि हम अपनी बात बाकी लोगों तक पहुँचा सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सवाल है कि आपने सोचा था ये बिल्कुल अलग यूनिक कॉन्सेप्ट है। हाँ जी सर। वेब सीरीज के दौर में है, हम ओटीटी प्लेटफॉर्म के दौर में है, हाँ जी। और वहाँ इस तरह म्यूजिकल सीरीज लेके आना, हाउ इट हैपेंड, हाउ द होल जर्नी स्टार्टेड। सो बेसिकली व्हाट वी थॉट कि एक हाँ, मी एंड विक्रम कि एक छोटे से 4 मिनट के गाने में पूरी स्टोरी आप बता नहीं सकते हैं। कुछ स्टोरी रह जाती है, कोई बैक स्टोरी रह गई कि पहले क्या हुआ था और इसके बाद क्या हुआ था, या ये कैसे मिले या क्या हुआ। तो दैट वाज वो एक चीज़ जो हमने ध्यान में रखी कि यार ऐसा हो कि हम 15, 20, 25 मिनट की पूरी कहानी कह सकें दो लोगों की, जिसमें बैक स्टोरी भी आ जाए कि कहाँ से आए हैं, कैसे मिले, फिर क्या हुआ और क्या मुश्किलें आई। तो पूरा एक like a story we should be able to tell. As a director, he actually wanted to do this a lot. तो फिर उस पर हमने काम किया कि यार हम भी तो ऐसा, we are a storyteller, we tell story through songs, and why not have a story which is big enough and makes songs according to the story. And वैसे भी आजकल गाने स्टोरी के हिसाब से कम, मूवी में प्रमोशन के हिसाब से ज़्यादा आ रहे हैं, तो हमने सोचा हम स्टोरी के हिसाब से बनाते हैं। आर्टिस्ट क्या सोचा था इतनी कामयाबी मिली कि लोग इतना सराहेंगे इस कॉन्सेप्ट? I believed in the concept. No, actually, yeah, it was little. No, I was actually, हम contemplate कर रहे थे होगा नहीं होगा, Yeah. Yeah, matlab this is like, it's like a combination for them, because he directs and he makes the song, and this is like a perfect combination that they could show the story as well as the songs, of course, जो तो होना ही है. So it was like a perfect combination. So it was a very new idea, but
I mean, when we were shooting and then we saw the edit, then we saw the video, so we were kind of satisfied with the result. विक्रम बिल्कुल यूनिक और ये माहौल भी यूनिक ही मतलब मुझे तो बहुत यूनिक लग रहा है टेल अस कैसे कितना आसान और मुश्किल था गजेंद्र को ऑन बोर्ड लाना हाउ इट इज ऑल स्टार्टेड यू ऑलरेडी आस्क्ड गजेंद्र So- योर थॉट So Gajendra is one of my favorite artists. मैं वैसे एक बात बताऊँ तो भी मेरे बड़े भाई हैं तो So I have seen him actually. इनको मेरे को ऑन बोर्ड नहीं लाना पड़ता है मैं बोर्ड पे ही हूँ No, but I have seen him from the childhood, and he's the most favorite singer or artist or pop artist I know, and I see him performing in a crowd of 1 lakh or 10 lakh people. So I always see him that way. अब जो नए नए आइडियाज़ हैं, so I always think of new ideas के क्या क्या नए आइडियाज़ हम लोग मिल के कर सकते हैं, चाहे वो तेरा घाटा की लाइंस हो या कोई म्यूज़िक सीरीज़ हो या किसी भी तरह का इंडिपेंडेंट म्यूज़िक हो जो हम इंडस्ट्री में दे सकते हैं, जो हु कैन सेट अ बेंचमार्क टू द इंडस्ट्री स्पेशली इन द म्यूज़िक इंडिपेंडेंट म्यूज़िक इंडस्ट्री. क्योंकि लिरिक्स भी आपने लिखे हैं और व्हाट इज योर ब्रीफ और उसको पूरा एक पूरी की पूरी सीरीज बनाना वो कितना मुश्किल और आसान था कि उसको पेन डाउन भी करना है ये कहानी कहनी है उसको Actually- गाना भी है उसको परफॉर्म भी करना है नहीं, और this- क्या विक्रम इट वाज ऑलवेज देयर इन योर माइंड कि भाई आप ही करो सब कुछ नहीं सी वी ऑलवेज गो फॉर द बेस्ट कि अगर लिरिक्स अच्छे हैं, उसकी कंपोजिशन अच्छी है, म्यूज़िक अच्छा है, तो पूरी चीज़ें फिर फाइनलाइज करके देन वी गो फॉर के इसको गाना आगे करना है कि नहीं करना. देन वी थिंक ऑफ स्टोरी आइडियाज़ कि इस गाने को या कैसे किस स्टोरी में हम कह सकते हैं जो इसको जस्टिफाई करे उस गाने के लिए और जो इसकी कहानी आगे सबको पहचान सके. I just want to add, I think this guy being really humble. Nah, I'm telling you, this guy I think as a Vikram and as Gajju, as a team, Vikram is one person. Vikram bhai, I call him. Vikram bhai is one person who will keep pushing you in different boundaries. वो हमेशा गज्जू को पुश करते हैं और गज्जू ऐसा नहीं कि गजेंद्र ऐसा नहीं कि आके बोलेगा अरे नहीं होगा, वो कुछ अलग ही और मतलब आप एक बोलेगा तो 11 आ जाता है, राइट. दैट इज़ व्हाट इट हैज़ हैपेंड विद दिस. क्योंकि एज अ व्यूअर जब मैंने पहली बार देखा, जब कॉन्सेप्ट सुना अच्छा लगा, बट जब आप देखते हो तो वो एक अलग फीलिंग है और वो फीलिंग के साथ सोल म्यूजिक जो है ना वो आई थिंक गजेंद्र ने टच विद गॉड, आई मीन ही टच्ड इट समवेयर. तो वो चीज़ें और विक्रम भाई ने पूरे जस्टिफिकेशन करते हैं जब वो फिल्मोग्राफी करते हैं. तो आई थिंक दिस गाइज आर बीइंग हम्बल, बट आई एम टेलिंग एज अ व्यूअर इट इज व्हाट इज, एंड मानसी has done an amazing job.